Knowledge is knowing a tomato is a fruit, but wisdom is not putting it in a fruit salad. Namaste. With this wonderful quote, I, Dr. Akanksha Agrawal, welcome you all in my channel Craft Karma Inc. Let's begin today's lesson, that is verb. What we call a verb in Hindi, हम verb को हिंदी में क्या कहते हैं? हम verb को हिंदी में क्रिया कहते हैं. The verb is a word used to express some actions, feelings or existence. It tells us something about the subject in a sentence. It always found in the predicate of the sentence. In very simple line, we can say that a verb is used to express an action, a condition or a state of being. For example, of verb, we can say Sonia reads a book. सोनिया किताब पढ़ती है. तो reads क्या हुआ आपका? verb. अंकित eats sweet. तो eats क्या हुआ आपका? verb. I feel cold. मुझे ठंड लग रही है. तो ठंड जो है cold, वो आपका verb है. Dashrath was a great king. तो was a is also known as a verb. I go to school every day. तो go क्या हुआ आपका? यहाँ एक्शन हो रहा है. किसी ना तरीके से एक्शन होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं. एक स्पेशल पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ. वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंगली सेंटेंस में यूज होता है. अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी अपना सिंगुलर होगा. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा. Now, type of verb, it is divided into two parts, two main categories. They are as first principal verb and auxiliary verb. Principal verb के दो parts होते हैं, transitive verb, intransitive verb. और जो auxiliary verb या helping verb बोलते हैं, उसके तीन parts होते हैं. Primary auxiliary verb, modal auxiliary verb and third is semi-modal auxiliary verb. अब आइए मैं इसका आपको डिटेल में बताती हूँ. जो फर्स्ट टाइप का होता है जिसे हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, जिसे मुख्य क्रिया हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में मैं बताती हूँ. द वर्ब दैट कन्वेज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वर्ब. जो वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ मिलकर सेंटेंस के अर्थ को बताता है, उसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, ही रीड, आई प्ले, वी गो. मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब ये दो टाइप के, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब यूज अ सब्जेक्ट एंड वन और मोर ऑब्जेक्ट. I will explain you with some example. सीता फल खा रही है, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सीता is eating fruit. In this sentence, सीता is a subject and fruit is a object. Second example, राकेश is writing a book. राकेश पुस्तक लिख रहा है. Here राकेश is a subject and object क्या होगा इसमें? book. So when you will ask क्या लिख रहा है, what he is writing, you will get the answer पुस्तक, book. This the object that the transitive verb लिख रहा है, to write, that is using. Now we all are moving to the next sub part, that is intransitive verb. Intransitive verbs are those verbs which are used a subject but not a object. These verbs are easier to grab as they don't contain object. In Hindi, the intransitive verb can be differentiated from the transitive verb by कौन या who. Question can be formed by कौन plus kriya, who plus verb. The answer is the कर्ता or the subject. With some example, सीता हंस रही है. सीता is laughing. कौन हंस रही है? Who is laughing? सीता. गोपाल चल रहा है. गोपाल is walking. कौन चल रहा है?
गोपाल चल रहा है। आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। अब हम वर्ब के एक सेकंड टाइप में जा रहे हैं। जो मेन टाइप है वो है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। इसे हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। दैट वर्ब विच इज हेल्प टू एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब इज कॉल्ड द helping verb. Examples for this verb: she waves at her cousin. The mouse squeaks with delight. Ram walks around the park non-stop. Primary auxiliary verb, अभी मैंने आपको बताया auxiliary verb. अब इसके हम सब जो parts हैं उसके बारे में जान रहे हैं। Primary auxiliary verb वह verb जो main verb तथा helping verb दोनों के रूप में काम करता है, उसे हम primary auxiliary verb कहते हैं। एग्जाम्पल: शी डिड वेल इन एग्जाम, शी डिड नॉट वेल इन एग्जाम, मिल्क इज वाइट। जब यह वर्ब किसी सेंटेंस में अकेले रहता है तब यह मेन वर्ब होता है, और जब यह मेन वर्ब के आते ही तब यह वर्ब मेन वर्ब आ गया तो यह हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। जो वर्ब अवस्था या भाव को, अवस्था मतलब सिचुएशन, भाव मतलब एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है, सेंटेंस में बिना मेन वर्ब के नहीं आते हैं, और इसका प्रयोग सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही किया जाता है। एग्जाम्पल: आई कैन डू इट, तो कैन क्या है आपका? वो। आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, तो शैल क्या हो गया आपका? वो। यू मे पास दिस ईयर, तो मे क्या हो गया आपका? वो। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जनरली 3 टाइप में डिवाइडेड है, बी, हैव और डू वर्ब्स के लिए। जो बी वर्ब्स होते हैं उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर यूज होता है। जो हैव सेंटेंसेस होते हैं, वर्ब हैव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हैज, हैव एंड हैड होता है। और वर्ब जो डू वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें डू, डज और डिड होते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब का जो है वो सेकंड पार्ट जो है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स जनरली 13 टाइप्स के होते हैं। मैं उनकी लिस्ट आपको बताती हूँ। कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, यूज्ड टू, ought to, need, dare और must। ये सारे जो हैं ये आपके प्राइमरी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। Now we will study about the next sub part of auxiliary verb, that is semi modal auxiliary verb। वैसे modal auxiliary verb जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में काम करता है, दोनों में यूज होता है, उसे हम सेमी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल: नीड ही कम हियर डेली, ही नीड कम हियर डेली। सेमी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जाम्पल बताया। मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ वर्ब के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब जैसे टेल, प्रॉमिस, ऑफर, आस्क, गिव एक्सेट्रा 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्यक्ति सूचक शब्द मी, व्यक्ति सूचक शब्द मतलब पर्सनल, पॉइंटिंग टू द पर्टिकुलर पर्सन। मी, अस, हिम, देम, यू, हर एंड नेम को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कहते हैं। और वस्तु या ऑब्जेक्ट वाले शब्द जैसे कि एप्पल, बुक, लेटर, मनी एक्सेट्रा, इनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है। एग्जाम्पल्स: ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दिया, मी। माई ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्टोरी, मेरी दादी ने हमें कहानी सुनाई। आई प्रोवाइडेड हिम सम मनी, मैंने उसे कुछ पैसे मुहैया कराए। शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, तो मी क्या हुआ? इनडायरेक्ट। विल यू मेक मी अ कप ऑफ टी, मी वर्ब। ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जबकि स्टोरी, अ बुक, सम मनी, अ क्वेश्चन, अ कप ऑफ टी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
So friends, by this I am ending my today's lesson. I hope you have understood the verb. Thank you so much for watching Craft Kar Mind.